Good morning, students. Today we are going to begin with the first chapter in statistics, that is introduction. Means in this chapter we are having an introduction of economics. Now we are not studying statistics in this chapter. The main part what I want to explain you about statistics is in chapter number 2, that is meaning, scope and importance of statistics. That I will come back to that point later. First, students, let us just get an intro of this word economics and why this economics why the statistics is included in economics. See children, the science of economics is not very old. It is means from Adam Smith's book. Adam Smith की जो book थी, An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth Nations, it was published. So with the increase in the areas of human activity, the scope of economics considerably increased. धीरे धीरे economics का scope क्या हो गया? It started increasing. So now it has been, the word economics has been derived from the Greek words oikos, means house, ठीक है, and means to manage, means how to manage the house. This is the meaning of economics. So economics का simple word में meaning क्या होगा? House management. Earlier उसको हम क्या बोलते थे? It was called as political economy. Now students, meaning of economics is being defined by various economists. So as a subject, economics is not very old. There is no harmony on its definition. So various definitions of economics is developed during the course of history and it has been broadly classified into 4 parts. Means economics का wealth definition, it is given by Adam Smith. Welfare definition is given by Alfred Marshall. Same way, scarcity definition is given by Lionel Robbins and growth definition is given by Samuelson. We don't have to do anything with this, neither it is going to come in exam. Just मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ. Now, wealth definition. So according to Adam Smith, what is the definition of economics is what? Economics is the science of wealth. But in ordinary language, wealth का मतलब क्या होता है? Money. लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो वेल्थ का एक स्पेशल मीनिंग होता है. क्या होता है वेल्थ? मतलब इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. मीन्स जिससे हमारे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होते हैं, जिस चीज़ से, दैट इज कॉल्ड एज वेल्थ. ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ. Then Alfred Marshall has also given its definition. According to him, economics is a study of man in an ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Then we have a scarcity definition. You all know what is the meaning of scarcity. Scarcity मतलब shortage, कमी होना. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक वो साइंस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को पहचान रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ डिस्क्राइबिंग योर रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीनिंग. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एंड्स. नाउ सी चिल्ड्रन, एंड्स का मीनिंग क्या होता है? एंड्स एंड स्कैर्स मीनिंग मीन्स व्हाट ऑल आवर वांट्स, जो हमारी वांट्स होती है और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत स्कैर्स होते हैं. इन दोनों के बीच में हमें ऑल्टरनेट यूज़ करना है. यू रिमेंबर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आई हैड टॉट यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट रिसोर्सेज. पीपीसी में मैंने पढ़ाया था कि नहीं? व्हेन वी आर यूजिंग वन कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी को से मीन्स अगर हम लोग एप्पल खाने के लिए अगर बनाना का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग ऑल्टरनेट यूज़. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट यूज़. मीन्स एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करने के लिए दूसरी कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट यूज़. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? स्कैरसिटी. सी चिल्ड्रन, स्कैरसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. डेफिनेटली हर चीज़ की सबसे बड़ी मुसीबत जड़ क्या है? स्कैरसिटी. स्कैरसिटी मतलब क्या? एज आई टोल्ड यू, शॉर्टेज मतलब कमी होना. आज हमारी एवरीडे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है सब स्कैरसिटी की वजह से आती है ना. बिकॉज क्यों? पेट्रोल डीजल सब क्यों महंगे हो रहे हैं? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज एकदम स्कैर्स हो रहे हैं. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे. अगर हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखें, सो वी आर हैविंग स्कैरसिटी ऑफ मनी. ओके, हमें हर चीज़ को बहुत वाइजली यूज़ इसलिए करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग मनी, वेल्थ. I don't want to use the word money. We are not having wealth in abundance. It is there a what कि you are having a lot of wealth and your parents or everyone has allowed you buy anything, go for shopping, or is it something like that कि हम लोग जो चाहें वो खरीद सकते हैं? नहीं ना.
क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स हैं। रिसोर्सेज मतलब हम लोगों के लिए क्या रिसोर्सेज है, आवर वेल्थ इज़ आवर रिसोर्सेज, मीन्स वेल्थ की कमी है तो हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वी हैव टू यूज़ इट वेरी वाइजली अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो स्कैर्सिटी रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इनफ। जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्कैर्सिटी। एंड टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ दिस पीपल, जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और रिसोर्सेज से क्या होता है, लोगों की वांट्स का सेटिस्फैक्शन होता है। सो स्कैर्सिटी इज परवेसिव एंड इज़ अ फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल in the whole world. So scarcity of resources is the basic reasons for the existence of economic problem in all the economies. This is a very important point children, आपको इसको ध्यान से समझना है। मतलब scarcity of resources एक ऐसा basic reason है किसके लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मतलब हमारी इकोनॉमी के जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसकी सबसे बड़ी रूट कॉज, सबसे बड़ी फसाद कौन सी है, स्कैर्सिटी। समझ में आ गया। सो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हर चीज़ के लिए कॉस्टली है। अभी आपको पता ही होगा, डे बाय डे यू मस्ट हैव सीन ऑयल प्राइजेज आर शूटिंग अप सो हाई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भाई ऑयल के लिए या पेट्रोल के लिए वॉट एवर क्रूड मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी limited in nature, so resources are very limited, so this is the meaning। तो इसके वजह से हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन ऑल द इकोनॉमी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, क्यों आती है, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ़ रिसोर्सेज वर नॉट स्कैर्स। सेम वही बात जो मैंने बताई आपको, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती तो क्या हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती, क्या नहीं। हम लोग जो चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, हम लोग जो चाहे वो मोबाइल ख़रीद लें, जो चाहे वो लैपटॉप ले लो घर में। मतलब इन योर डेली लाइफ वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन एक्वायर विथ द वेल्थ। समझ में आ गया इसका मीनिंग। स्कैर्सिटी का मीनिंग स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो अभी तुम्हें क्लास 11th में समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आफ्टरवर्ड्स एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो स्कैर्सिटी अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। क्यों? बिकॉज हमारे इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैर्सिटी इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ना हमें स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी है देखो, रेलवे रिजर्वेशन पे हमें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना रेलवे के काउंटर में, या फिर बस और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जो हमारा पेट्रोल या ऑयल है वो सब एसेंशियल कमोडिटीज़ है। इंक्रीजिंग प्राइजेज ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। वेजिटेबल और पल्सेस के भी प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्कैर्सिटी, मीन्स ये सारी चीज़ें को हम बोलेंगे स्कैर्सिटी। सो वी फेस स्कैर्सिटी बिकॉज द थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। इसका मतलब हम स्कैर्सिटी क्यों फेस करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, वो सब क्या है, लिमिटेड है, वो हमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब why do we study economics students? Because it is enables us to understand different aspects of the economy. See children, economics जो सब्जेक्ट है आपको फुल 5 years तक पढ़ना है, जब तक आप बीकॉम करोगे तब तक, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स क्यों हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज इट अनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें समझना है, एंड हेल्प्स इन एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर the main reason for the study of economics can be simplified to a single word. मेन रीज़न इकोनॉमिक्स का क्या है, स्कैर्सिटी। फिर से देखो यहाँ पे स्कैर्सिटी वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही इकोनॉमिक्स में मेन वर्ड है। सो इन अदर वर्ड्स ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। सबको पता है हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा है किसके सामने, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। मान लो एग्जाम्पल ले लो, हमारी सैलरी जो है 20,000 है, ठीक है। उस 20,000 के अंदर हमें घर के सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं कि नहीं, मतलब हमारे सारे वांट्स मतलब जो भी हमारी डिमांड होती है, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, और अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज मतलब जितना पैसा मेरे पास है या जो सैलरी हमारी बन रही है, उसी अकॉर्डिंग टू दैट रिसोर्सेज वी हैव टू सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स। So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending wants. इसका मतलब इन सारे scarce resources को allocate करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वांट्स तो हमारी नेवर एंडिंग है. मान लो आज आपको मोबाइल की ज़रूरत है, आपको मोबाइल दिला दिया. आफ्टर 2 years you will say you want a laptop, then you will say that you want a bike or you want a scooter, then you want a car. So our wants are unlimited in nature. So economics is concerned with the selection of resources under conditions of scarcity. Now see, definition of economics क्या क्या है? Wealth definition, welfare definition, scarcity definition and growth oriented definition. इकोनॉमिक्स का अगर हम कंक्लूजन करते हैं तो क्या होता है ये? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कैर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. मतलब जो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज है उसका ऑल्टरनेट यूज़ होना चाहिए ताकि हम वेरियस कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकें टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन. मतलब उस सारे वो रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ताकि और लोग भी उसको कंज्यूम कर सकें, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं. ओके, नाउ सी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब देखो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.